हाँ जी, गेटवे टू इंग्लिश चैनल ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ, ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਹਾ, ਰਹੇ, ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਹਨ, ਹਾਂ, ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਨੇ, ਇਜ਼ ਹੈ, ਐਮ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰ, ARE, ਆਰ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ। ਤੇ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ING ਫੋਰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਫੋਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ING ਫੋਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ING ਫੋਰਮ ਆ ਗਈ ਵਰਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਟੇਕਿੰਗ ING ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਮਿਲਕ। ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨੋਇਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨੋਇਜ਼, ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ING ਫੋਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਈ, ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਇਜ਼, ਐਮ ਤੇ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਤਾਂ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪਲੂਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ING ਫੋਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ING ਫੋਰਮ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ऑब्जेक्ट। सो ये सी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, उस तो बाद जेकर सेंटेंस नैगेटिव होवे इसे टेंस का तो की करना है, जिमें सेंटेंस देख लो उही सेंटेंसिज अपन ने रखे ने, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लैटर, ठीक है। इत्थे की किया अपन ने, इज तो बाद नोट इत्थे इंसर्ट कर दिता। आई एम नॉट टेकिंग मिल्क, इत्थे नोट अपन ने इंसर्ट कर दिता एम तो बाद, ठीक है। दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, इत्थे अपन ने आर तो बाद नोट लगा दिता। इसका मतलब ये होया पॉजिटिव सेंटेंस नूं जेकर नैगेटिव दे विच आपां ने कन्वर्ट करना होवे तां आपां की करांगे, हैल्पिंग वर्ब तो जस्ट आफ्टर हैल्पिंग वर्ब नोट आपां लगा दांगे। इज नोट हो गया, एम नोट हो गया, आर नोट हो गया। बाकी स्थितियां सेम रहणगियां। सबजैक्ट उत्थे ही आउणा पहले नंबर ते सबजैक्ट आउणा है, दूसरे नंबर ते देखो हैल्पिंग वर्ब आउणी है, तीसरे नंबर ते नोट आ गया इत्थे, ठीक है। उस तो बाद ING फॉर्म है, देखो ING फॉर्म। उस तो बाद ऑब्जेक्ट है। क्लीयर, यानी कि स्ट्रक्चर की बन गया अपने कोल, स्ट्रक्चर बन गया कि सब तो पहले नंबर पर सबजैक्ट लिखना है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, उस तो बाद नोट लिखना है, उस तो बाद ING फॉर्म है, उस तो बाद लिखना है बेटा ऑब्जेक्ट, ते लास्ट ते तुसी लगाउणा इत्थे फुल स्टॉप। क्लीयर, ये होगा नैगेटिव सेंटेंसिस का स्ट्रक्चर। दैन इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस, जेकर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो फिर की स्ट्रक्चर होएगा। एग्जाम्पल्स देख लो पहला, इज ही राइटिंग अ लैटर, एम आई टेकिंग मिल्क, ते आ दे मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। ये हो गया अपने बेटा। जेकर वीडियो में लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी सैकेंड टर्म की वधिया तैयारी कर सकन, ठीक है। सो हुण देखो इस दे विच की चेंज आई, आपां ने की कीता, सबजैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब लिख दी, हैल्पिंग वर्ब नूं पहले नंबर ते लिआए आपां, सबजैक्ट तो बाद सी। देखो वैसे सेंटेंस की सी, ही इज राइटिंग अ लैटर, हुण की कीता आपां ने, इज इत्थे हुंदा सी, इज इत्थे सीगा, ये इत्थों चक के आपां इज नूं कित्थे लै गए, इत्थे लै गए पहले नंबर ते। इस तरह एम इत्थे सी पहला, उरे सी एम, इत्थों चक के आपां एम नूं कित्थे लै गए, एम नूं आपां इत्थे लै गए, इत्थों चक के एम कित्थे गया, इत्थे चला गया, ठीक है। बाकी उत्थे ही है, ING फॉर्म उत्थे ही है, ऑब्जेक्ट उत्थे ही है। एक चेंज हो रहा है लास्ट ते आपां ने इंट्रोगेशन साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, ठीक है। ये भी एवें देखो, पहला आर इत्थे सी, दे आर मेकिंग अ नॉइज सीगा, आर नूं इत्थों चक के कित्थे लै गए आपां, आर इत्थों चक के आपां लै गए फस्ट नंबर ते, ठीक है। उस तो बाद जो है ING फॉर्म एवें ही है, ऑब्जेक्ट एवें ही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट ते अपने लगा दिता। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये बन गया भी जदों भी तुसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो पहले नंबर ते तुसी हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी कि इज एम आर तिन्ना विचों कोई एक वर्ड तुसी सब तो पहले नंबर ते लिखोगे जेकर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। दूसरे नंबर ते तुसी लिखना है सबजैक्ट, तीसरे नंबर ते तुसी लिखोगे ING फॉर्म वर्ब दी, उस तो बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ते लास्ट ते लिखोगे क्वेश्चन मार्क। क्लीयर। सो अगे देखो हुण आ रहा तुहाडे कोल, जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव भी है, ठीक है, तो फिर की स्ट्रक्चर बनता है। देखो इज ही नॉट राइटिंग अ लैटर, इत्थे की कीता अपने, देखो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एज इट इज़ है, इज ही राइटिंग अ लैटर एवें सी, ही तो बाद इत्थे नोट आपां ने इंसर्ट कर दिता, यानी कि ये ही की है, सबजैक्ट है, आई भी सबजैक्ट है, दे सबजैक्ट है, इत्थे आपां ने नोट लगा दिता जस्ट आफ्टर सबजैक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस तो बाद ING फॉर्म उत्थे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आया, इसकी प्लेसिंग वही है। उस तो बाद जो है ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग भी वही है, कोई चेंज नहीं किया अपने, तो लास्ट ते क्वेश्चन मार्क है, ये लगाना है क्योंकि सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक है, तो लगना ही लगना है, ठीक है। सो हैल्पिंग वर्ब शुरू च आएगी क्योंकि प्रश्नवाचक वाक है। जदों भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैल्पिंग वर्ब हमेशा पहले नंबर पर लिखनी है, उस तो बाद सबजैक्ट लिखना है। जेकर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के नाल नैगेटिव भी है तो सबजैक्ट तो तुरंत बाद तुसी नोट इत्थे इंसर्ट कर दोगे, बाकी वही चीज़ां रहणगियां एवें दे एवें रहणगियां। क्लीयर। सो स्ट्रक्चर ये बन गया कि पहले नंबर पर हैल्पिंग वर्ब आऊगी, दूसरे नंबर पर सबजैक्ट है, तीसरे नंबर पर नोट आएगा, चौथी प्लेस ते कौन आएगा, ING फॉर्म मेन वर्ब, उस तो बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट से तुसी लगाओगे क्वेश्चन मार्क। क्लीयर। हाँ एक होर पॉइंट है, इस तो बाद आप प्रैक्टिस करांगे बुक के बेस दे विच, ठीक है, तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां प्रैक्टिस करदे आंगे इस तो बाद। सो WH फैमिली का जो कोई वर्ड आ जाता है WH फैमिली का, ठीक है, WH फैमिली तुसी सारे बच्चे जानते होवोगे, जिमें कि वर्ड है वाई है, वैन, वॉट, वेयर, विच, हू, हुज, होम, हाउ, ठीक है, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स अखवाउंदे ने, ठीक है। इन्होंने इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रश्न बनाने लई यूज किए जाते हैं। सो जेकर WH फैमिली का कोई वर्ड आया होया है उसनों तुसी बिल्कुल पहले नंबर पर लिखोगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिमें आप पिछे डिस्कस किया है उवें ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आ देखो हैल्पिंग वर्ब लिखी है पहला,
फिर सबजैक्ट लिखिया, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जैक्ट है, उस तो बाद क्वेश्चन मार्क है। इसे तरह अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस उपर बनाया सी। फर्क की किया बस हुण जो हैल्प ये आ गया WH फैमिली का वर्ड, उसनों तुसी हैल्पिंग वर्ब तो भी पहला लिख दोगे, नंबर 1 ते लिख दोगे फिर, ठीक है। एवें ही आ सेंटेंस देख लो, WH फैमिली का वर्ड आ गया, वाई आर यू। जेकर ये सेंटेंस नैगेटिव भी है प्रश्नवाचक होने के नाल तो हुणे आपां डिस्कस किया है कि सबजैक्ट तो बाद नोट लगाना तुसी, यू सबजैक्ट है इत्थे नोट लग गया, बस ING फॉर्म हो गई, ऑब्जैक्ट हो गया तो क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लीयर। सो इसका स्ट्रक्चर की बन गया अपने कोल, WH फैमिली का वर्ड पहले नंबर ते, नंबर 2 ते इत्थे हैल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हैल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट इत्थे तो हैल्पिंग वर्ब जो है एक ही पार्ट वाली हैल्पिंग वर्ब है, सो इत्थे पूरी दी पूरी इत्थे ही आ गई। पर जेकर हैल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होण जां 3 पार्ट होण, वो भी आपां आउण वाले टेंसिस दे विच डिस्कस करांगे। फिलहाल तुसीं ये ध्यान रखो इत्थे कि WH फैमिली का वर्ड, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब, फिर सबजैक्ट। तो जेकर सेंटेंस नैगेटिव भी है तो सबजैक्ट तो तुरंत बाद नोट भी ऐड करना है, उस तो बाद ING फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जैक्ट लिखना है, लास्ट ते तुसीं लगाउणा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ इत्थे एक ध्यान रखना, जेकर हू वाला सेंटेंस है, कोई हू तो शुरू हो रहा है, फिर तुसीं सीधा जो है हू तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखोगे तो हैल्पिंग वर्ब तो तुरंत बाद ING फॉर्म लगनी है, ठीक है। जिवें इत्थे सबजैक्ट लिखा गया सी, इस सेंटेंस दे विच ये नहीं है, इत्थे कोई भी वर्ड तुहानूं लिखण लई नहीं मिलेगा, इत्थे नहीं लिखना है कुछ भी। हू तो बाद हैल्पिंग वर्ब तो बाद मेन वर्ब आ जाएगी, सीधा ING फॉर्म, ठीक है। तो लास्ट ते ऑब्जैक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। सो आओ हुण आपां प्रैक्टिस करते हैं तुहाडी बुक दे बेस ते। बुक दे विच तुहानूं ये दिता होया, तुहाडे बुक दे विच टॉपिक हैगा यूज ऑफ टेंसिस दे विच, ठीक है। 6.1.2 ये हैगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखो थोड़ा जिहा इस दे विच इंस्ट्रक्शनस ने, ये आपां डिस्कस करनियां बनदियां भी ने। ये एक बार इसनूं देख ले, मैं तुहानूं समझा दिंदा इसनूं, उस तो बाद प्रैक्टिस लई अपने कोल सेंटेंसिस ने, ठीक है। सो फस्ट गल दिमाग विच रखण वाली गल हैगी है, ठीक है। द पॉइंट टू बी कैप्ट इन योर माइंड इज़ टू एक्सप्रैस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये मैं पहला भी दस्सिया है। इसका मतलब ये है भी जदों कोई आपां गल कर रहे हैं किसी काम बारे अते वो काम गल करन दे मौके ते कंटीन्यूअस है, जारी है, उस टाइम भी वो चल रहा है, उस तरह की गल नूं, उस तरह के एक्शन नूं रिप्रजेंट करन लई आपां जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वरतों करते हैं, ठीक है। जिवें एक एग्जाम्पल हैगा, शी इज़ निटिंग सॉक्स, कि वो जुराबां बुन रही है, इस टाइम बुन रही है वो। सो एक हो गया गल करन दे मौके ते जो एक काम जो है जारी है, ठीक है। सो इस तरह का जदों कोई भी आपां एक्शन डिनोट करना होवे, लिखना होवे, उदों आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वरतों करते हैं, ठीक है। ये सारे एवें दे एग्जाम्पल्स ने। यू आर डिसीविंग योर फ्रेंड, तुसीं अपने दोस्त नूं धोखा दे रहे हो। आई एम राइटिंग अ लैटर, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हाँ, ठीक है। दूसरी गल ध्यान रखने वाली है, एज अ सबसटीट्यूट फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, ठीक है। बिल्कुल नेड़ले भविख नूं डिनोट करने वास्ते भी आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वरतों करते हाँ। जिवें देखो सेंटेंस है, माई ब्रदर इज़ रीचिंग हियर, मेरा भरा इत्थे आ रहा है, इन एन आवर, घंटे दे विच, ठीक है। आ रहा है कहण देखा जाए तो गल यह है कि मेरा भरा 1 घंटे दे विच आवेगा, गल तो फ्यूचर की अजे आया तो है नहीं, आना है उसने अजे, पर फिर भी इसनों आपां फ्यूचर प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच भी लिख सकते हाँ, ठीक है। आपां कह रहे मेरा भरा इत्थे आ रहा है, ठीक है। इस तरह शी इज लीविंग दिस प्लेस टुमारो, वो इस स्थान नूं कल नूं छड्ड रही है, ठीक है। असल च की भावार्थ की है गया भी वो ये थां कल नूं छड्डेगी, गल तां फ्यूचर दी है पर नीयर फ्यूचर की गल है, उसनूं आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच लिख सकते हाँ। क्लीयर। ये भी एवें, यू आर प्रोसीडिंग टू अमरीका नैक्सट मंथ, तुसीं अगले महीने अमरीका जा रहे हो। सो ये भी उही गल है, नीयर फ्यूचर है, उसनूं आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे विच बना सकते हैं, ठीक है। आओ हुण तुहाडे बुक दे विच जो एग्जाम्पल्स ने उन्हां नूं डिस्कस करते हैं आपां, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे सारे सेंटेंसिस ने ये देखो। फस्ट सीगा व्हाट डैश यू डैश नाउ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी, WH फैमिली का वर्ड आया होया, हुणे पिछे आपां करके हटे हाँ। WH फैमिली का वर्ड सब तो पहले नंबर पर लिखना होंदा है, उस तो बाद की लिखना होंदा है, हैल्पिंग वर्ब लिखनी होंदी है। हुणे आपां पिछे डिस्कस करके हटे हाँ, देखो इत्थे देखो तुसीं आ देखो WH फैमिली का वर्ड है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सबजैक्ट लिखना है। देखो इत्थे चलो हुण देखो WH फैमिली का वर्ड हो गया,
फिर हैल्पिंग वर्ब है, उस तो बाद सब्जैक्ट आ गया। सब्जैक्ट तो बाद ING फॉर्म ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ING ਫॉर्म ਹੈ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ING ਫॉर्म ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਡ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਦੇ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਲੰਡਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਐਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫॉर्म ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਦੀ ING ਫॉर्म ਬਣ ਗਈ ਗੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੰਡਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡੂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡੂਇੰਗ ਲਿਖਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੀਰਾ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਟਮੋਰੋ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਨੋਟ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ING ਫॉर्म। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਜ। ਤੇ ING ਕੰਮ ਦੀ ING ਫॉर्म ਕਮਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੀਰਾ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਟਮੋਰੋ, ਮੀਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਡੈਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਲੇ ਦੀ ING ਫॉर्म ਪਲੇਇੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, I ਡੈਸ਼ ਨੋਟਸ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੋਟ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ I ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, I ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮ, ਕਿਉਂਕਿ I ਨਾਲ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਟੇਕ ਦੀ ING ਫॉर्म ਟੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, I am not taking notes, इस तरह बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वाई, ये देखो WH फैमिली का वर्ड आ गया, लास्ट एक क्वेश्चन मार्क है, इट मीन सेंटेंस की है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है। लाफ अपने को वर्ब दी हुई है, मेन वर्ब की फस्ट फॉर्म दी हुई है इतने। क्लीयर। सो हुण देखो, ही सब्जैक्ट दिता हुआ है, ही सब्जैक्ट नाल हैल्पिंग वर्ब किहड़ी लगनी है, इज लगना है, इज यूज होगा। एम नहीं यूज हो सकता, आर यूज नहीं हो सकता। क्लीयर। इज यूज करना है। सो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस करके इज नूं आपां कित्थे लिखांगे, ही तो पहला लिखांगे इत्थे, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। पिछे आपां ने डिस्कस किया है, जेकर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होवे तां हैल्पिंग वर्ब सब्जैक्ट तो पहला लिखी दी हुंदी है। पहला लिखता फिर सब्जैक्ट आ गया, उस तो बाद ING फॉर्म लग जाएगी बस। ठीक है। वाई इज ही लाफिंग एट मी, वो मेरे ते क्यों हस रहा है। ठीक। नेक्स्ट देखो, राजन डैश अ बुक, फुल स्टॉप है, वर्ब है राइट। सेंटेंस जो है ना तो नैगेटिव बनना ना इंट्रोगेटिव बनना। जे नैगेटिव बनना तो इतने नोट लग्या होना चाहिए सीगा, इतने नोट नहीं है, ओनली फस्ट फॉर्म दी हुई है। इंट्रोगेटिव इस करके नहीं बनेगा क्योंकि पीछे इंटेरोगेशन का मार्क नहीं है। ठीक है। फुल स्टॉप है। सो सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग हैल्पिंग वर्ब की लग जाएगी इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जैक्ट है, नाम है राजन, राजन इज। राइट दी ING फॉर्म की बन जाएगी, राइटिंग, यानी कि राजन इज राइटिंग अ बुक। क्लियर। नेक्स्ट द बॉयज, सब्जैक्ट के द बॉयज, लास्ट से फुल स्टॉप है। ठीक है। इंट्रोगेटिव तो नहीं है, तो नोट दिता है नाल, नोट स्ट्रीम में, इट मीन नैगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है। द बॉयज प्लूरल है, आर हैल्पिंग वर्ब इत्थे लिखांगे, पहला इत्थे आर तो बाद नोट लिखांगे,
नोट तो बाद आपां लिखांगे स्विमिंग, इत्थे फिल करना है आर नॉट स्विमिंग। इत्थे स्पेस कट सी तां करके जो है पिछे लिखा होया, इत्थे लास्ट ते लिखा होया, तुसीं इत्थे फिल करोगे इसनूं इत्थे, ठीक है। द बॉयज़ आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ठीक है। लड़के नदी विच नहीं तैर रहे हैं। नैक्सट देखो, द वर्कर्स डैश द वॉल्स, ये भी फुल स्टॉप लग्या होया है, तो वर्ब पेंट दिता है, नोट पेंट नहीं लिखा, इस करके ना तो नैगेटिव है तो ना ही सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। द वर्कर्स देखो, वर्कर्स प्लूरल हो गया ना, ज़्यादा ने काम में एस लग्या, देखो वर्कर्स प्लूरल हो गया, प्लूरल नाल आर हैल्पिंग वर्ब इत्थे लगावांगे, उस तो बाद ING फॉर्म लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट लग्या ही होया पहला। सो ये बन जाएगा द वर्कर्स आर पेंटिंग, ठीक है। आर पेंटिंग इत्थे तुसीं फिल कर दोगे, इत्थे फिल कर दो इसनूं, बस क्लियर। नैक्सट है वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, WH फैमिली का वर्ड आ गया, ठीक है। तो इट मीन सेंटेंस की है, इंट्रोगेटिव है। वर्ब अपने को चेंज, सबजैक्ट ही है, ही नाल इज लगना है। हिज नूं इधर लिखण दी बजाए आपां इधर लिखांगे इज नूं, क्योंकि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव बनाउणा, सबजैक्ट तो पहला हैल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। इत्थे इज आ गया, उस तो इधरले पासे ING फॉर्म लग जूगी। नैगेटिव है नहीं सेंटेंस, जेकर नैगेटिव भी हुंदा तां आपां ही तो बाद इत्थे जो है नोट लिख दिंदे इत्थे, पर हुण ये नोट इस दे विच दिता नहीं होया नोट, इस करके आपां ने नोट इत्थे नहीं लिखना, सीधा ING फॉर्म लिख देंगे। तो सेंटेंस की बन जाएगा वाई इज़ ही चेंजिंग हिज क्लोथ्स, क्लियर। नैक्सट देखो, लास्ट 2 सेंटेंस हो रह गए अपने। शी डैश द कैंडल्स, फुल स्टॉप लग्या होया है, तो आपां नूं वर्ब दित्ती है ब्लो आउट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सीधा बन जाएगा शी की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, 3rd पर्सन सिंगुलर है, इज हैल्पिंग वर्ब लगनी है, ठीक है। ब्लोइंग आउट, शी इज़ ब्लोइंग आउट द कैंडल्स, क्लियर। लास्ट सेंटेंस अपने को, द ओल्ड मैन डैश विद कोल्ड, पॉजिटिव सेंटेंस है, शिवर का मतलब ना कंपना, ठीक है। सो इत्थे बन जाएगा द ओल्ड मैन इज आएगा, क्योंकि ओल्ड मैन की है 3rd पर्सन सिंगुलर है, इस करके इज हैल्पिंग वर्ब लगनी है। तो शिवर दी ING फॉर्म शिवरिंग, तो सेंटेंस की बन गया द ओल्ड मैन इज शिवरिंग, इत्थे इज आएगा, इत्थे आ जाएगा शिवरिंग, इत्थे फिल कर दो तुसीं इसनूं, ठीक है। इज शिवरिंग हो जाएगा, इज शिवरिंग, दी ओल्ड मैन इज शिवरिंग विद कोल्ड। सो बेटा ये सी तुहाडी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बिल्कुल मैं कोशिश की तुहानूं भी एक एक चीज़ समझ आई होगी। सो वीडियो नूं लाइक जरूर करना, शेयर करना, तो जेकर चैनल ते नवें हो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के उपर बेटा तुहानूं 2nd टर्म की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है बेटा। सो वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट्स इस टर्म की तैयारी वधिया कर सकन, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।